Beloveds, welcome to this Twin Flame Energy Check-in. We are here to find out what are the current energies in the Twin Flame dynamic in the collective. If you are here to watch this video, if you landed on this by any chance, you were meant to receive certain messages. So please take what resonates and don't forget to like, share and subscribe. Please let me know what you thought about this video. I love to hear from you as always. Right, so without any further ado, let us just find out what is happening in the connection. What wants to come across from the masculines, what wants to come across from the feminines. There are many changes coming across right now in the collective. There is a lot of reshifting, reshuffling energy, lot of readjustments going on in the twin flame dynamic as well. You might be experiencing a lot of changes within yourself and how you're dealing with stuff in general, and it's like it's a result of the attention that you're paying on yourself, on your person, on this journey as well. If you have stopped running around from things that were feeling uncomfortable, that were feeling unsafe in some way, like undesirable feelings coming up, but you're just sitting with yourself and doing the inner work, you will experience massive shifts this month. I'm feeling like massive shifts. So please be open to that. These are wonderful energies. This is really a blessing that we are coming across at this point of time. So let us see what is just happening. I'm just picking out cards from my energy oracle. There is a new and improved version of it. It's a hot selling deck at shop, so if you feel called to order it, you can go for it. You can just reach out and let me know in the comments down below. It's a beautiful monochromatic deck with which is just black and white. Beautiful deck. It's like some powerful energies in there. It is an oracle deck, but it also sums up as a tarot deck. Yeah, so it's created with that vision. Hi Rubina, hi Shiny, hi Divya. How are you guys feeling today? Oh gosh, many things happening with the masculine, okay, but I'll take all of them. Many cards falling out. What's happening with the feminine, please? Yo. Okay, lots coming up for the feminines as well. Bottom of the deck energy is 8 of Wands. Okay, so like I mentioned, fast paced action this is brilliant energy. There is a lot of telepathic communication going on between twin flames at this point of time. बहुत high powered energy आप भी feel कर रहे होंगे. बहुत energetic changes आ रहे हैं. Even though you might be feeling lethargic, कुछ feminines मुझे ऐसा लग रहा है lethargic feel कर रही हैं, lazy feel कर रही हैं. So yes, so बहुत fast paced action energy है. Even though you might be feeling a little bit lethargic today, dear feminine, but please know कि under the current बहुत सारे changes आ रहे हैं. Please trust that. Please know कि बहुत power packed, blockbuster, phenomenal. It's like I don't know, golden jubilee, पता नहीं कैसे कैसे words आ रहे हैं. Probably your masculine wants to take you out for a movie, okay, dear feminine. तो बहुत बढ़िया, बहुत this is like very beautiful energy coming across. Masculine wanting to just fly in to communicate, to meet, to get in touch with you. Probably they have a lot on their mind as well. I'm feeling masculines have a lot things on my mind जो कि वो communicate करना चाह रहे हैं अभी feminine से, but अभी भी प्रोसेस कर रहे हैं. अभी भी थोड़ा सा मैस्कुलिन्स है ना, पास्ट एनर्जी से अफेक्टेड हैं कि पास्ट में जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट किया वो चीज़ वो रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं. राइट, सो दे आर टेकिंग द टाइम टू प्रोसेस ऑल ऑफ दैट विच इज़ गोइंग इन देयर हेड, इन देयर हार्ट, एंड किस तरीके से वो अपने वर्ड्स को बयां करें, क्योंकि इतना कुछ चल रहा है अंदर. दे आर फीलिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू इवन प्रोसेस. मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाए. फियर आ रहा है ऊपर, और कई सारे मैस्कुलिन्स को एक बहुत बड़ा एनर्जी किक मिला है. ठीक है, एनर्जी किक एज इन व्हाट डू आई मीन बाय एनर्जी किक? इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक
मैस्कुलिन्स की बैटरी रिचार्ज हुई है कोई चीज़ को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। मैस्कुलिन की एनर्जी रिचार्ज हुई है। दे हैव फाउंड देयर सेंस ऑफ purpose, they have found their sense of freedom through this connection, and they are not willing to give up now. That's a huge change that is reflecting in the cards as well. 8 of Wands energy, and I am waiting for you. Okay, so फेमिनिन्स ऑलरेडी अपना काम कर रही हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फेमिनिन कलेक्टिव में भी काफ़ी सारे मतलब हुड़दंग मच रहा है, ठीक है। एंड यू आर एम्ब्रेसिंग द चेंजेस एज वेल डियर फेमिनिन, बट आपके मैस्कुलिन आपके लिए वेट कर रहे हैं फॉर सम रीज़न। दिस माइट बी योर एक्सेप्टेंस। लेग पेन बहुत हो रहा है, मेरा राइट फुट इज़ हर्टिंग लाइक क्रेजी, एंड मैंने कहीं उसको हर्ट नहीं किया, कहीं चोट नहीं लगी है, अपने आप ही बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है मेरा राइट फुट पर्टिकुलरली, एंड दिस टुडे इज़ अ थर्ड डे एंड द पेन इज़ वेरी इंटेंस। तो लेग पेन इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विथ एक्शन, स्पेसिफिकली योर राइट लेग, ठीक है। तो मतलब मैस्कुलिन्स वांटिंग टू कम फॉरवर्ड, वांटिंग टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, बट समहाउ कर नहीं पा रहे हैं अभी। वो अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें पीछे खींच रही हैं, राइट। तो उस सिचुएशन से, उस 5 ऑफ स्वॉर्ड सिचुएशन से अपने आप को मुक्त करा रहे हैं, इस डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। दैट इज़ वाई वी माइट बी एक्सपीरियंसिंग द फुट पेन। राइट हैंड भी बाजू पेन कर रहा है, राइट हैंड इज अगेन रिलेटेड टू कर्मा, टू द कर्मा दैट वी क्रिएट टू द वर्ल्ड, आवर ओन एफर्ट्स, आवर ओन वर्क। तो राइट बाजू में दर्द करना मतलब कि उनके वर्क से रिलेटेड भी थोड़ा सा शायद मैस्कुलिन बाउंड फील करते हैं जब, तो फेमिनिन को अपने राइट हैंड में पेन होता है। ऑल्सो राइट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू आवर फ्यूचर, है ना। राइट साइड इज कनेक्टेड टू आवर फ्यूचर, लेफ्ट साइड इज कनेक्टेड टू आवर पास्ट। तो फ्यूचर को लेकर कुछ उनके वर्क में भी चेंज आ रहा है। आई एम फीलिंग लाइक मैस्कुलिन्स आर रियली स्टेपिंग इनटू देयर ओन सोल पर्पस, या सोल पर्पस के बारे में सोच रहे होंगे, तभी शायद कुछ फेमिनिन सोल पर्पस के बारे, अपने सोल पर्पस को लेकर थोड़ा सा चिंतित हैं, थोड़ा सा उनके अंदर मंथन, चिंतित तो नहीं, चिंतित नेगेटिव वर्ड हो गया, बट अंदर मंथन चल रहा है कि वॉट एग्जैक्टली इज़ माई सोल पर्पस। एंड वो क्वेश्चन शायद आपके मैस्कुलिन भी पूछ रहे हैं अभी, इसीलिए आपको राइट साइड में दर्द हो रहा है, राइट। सो वॉट इज कमिंग अक्रॉस फॉर द मैस्कुलिन? फॉर द मैस्कुलिन फर्स्ट कार्ड कमिंग आउट इज एम्परर। पता नहीं मैं आज गेम शो होस्ट जैसे क्यों बात कर रही हूँ। दूसरा कार्ड आया है आज, द हैंगमैन। ओके, द एम्परर एंड हैंगमैन, इंटरेस्टिंग एनर्जी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, King of Pentacles, 6 of Pentacles. Bibu, can you please? Yeah. And then I have Knight of Forks, Knight of Swords, I mean, and Knight of Wands. Oh my gosh, 2 Knights हैं, एक किंग है, एक एम्परर है, हैंगमैन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव द डिज़ायर कार्ड कमिंग अक्रॉस। ऑफ कोर्स लाइक मेनी ऑफ द फेमिनिन्स अपनी धुन में लगी हुई है आज। तो काफ़ी मैस्कुलिन्स आज ये सेक्रेट चक्र एनर्जी फील कर रहे होंगे फेमिनिन्स की तरफ। दिस डिज़ायरिंग एनर्जी स्टरिंग अप विद इन द मैस्कुलिन्स, वांटिंग टू एक्सप्रेस what all they want to, how they want to express their love ना, it is all around that today। and masculines को like physically express करने में वो थोड़े ज़्यादा ईजी होते हैं, क्योंकि वर्ड्स कभी कभार उनको मिलते नहीं है स्पेसिफिकली इस कनेक्शन को लेकर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन टू वर्ड्स वट यूर फीलिंग, वट इज कमिंग अप विद इन। सो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स आर लाइक जस्ट लेट मी शो यू हाउ आई एम फीलिंग, बट दैट स्केयर्स द फेमिनिन अ लिटिल बिट, क्योंकि शी इज ऑल्सो लर्निंग टू ट्रस्ट हर सेल्फ मोर एंड मोर, एंड एज शी ईजेज इन टू दैट ट्रस्ट, एज शी opens up to the masculine, as she opens herself, her own body literally feels a relaxation surrounding the masculine. So of course things unfold very beautifully. Then I have the gratitude card coming out for the masculines, and last card is manifest. So this is, if you've been seeing 1111, if you've been seeing 111, or repeating numbers like 777, particularly like 444, 333, तो
आपके मास्कुलिन का नाम अगर आपको आज नज़र आया है, पर्टिकुलरली दिस मैसेज इज फॉर यू, योर पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू, एंड दिस इज लिटरली लाइक द फेमिनिन डांसिंग इन टू द मैस्कुलिन्स हार्ट, you know, and it's like they are not manifesting you like physically, but आप हो उन्हीं के अंदर, उन्हीं के दिल में हमेशा से थे, you have always had that place, but it's like now they want things to go to the next level, masculine wants to go to the next level with their feminine. Okay, अभी ही देखा तो so this is masculines rising up to their true divine masculine potential. Beautiful कार्ड आया है, ये फर्स्ट कार्ड आया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं मैस्कुलिन को अपने आप को लेके और इस कनेक्शन को लेकर, और फेमिनिन आप को लेकर जब ये सोचते हैं तो उनके मन में इतनी क्लैरिटी है, क्रेविंग हो रही है, आई एम क्रेविंग फॉर माई मैस्कुलिन सो मच. मून टैरो सिंह लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है. रुवीना सिंह ऊपर देखो, ऊपर कहाँ, यहाँ ऊपर देखो. क्रेविंग, हाँ राइट. दिव्या सिंह जा रही हूँ मैं नाम ढूंढने. सो हैंगमैन एनर्जी मैस्कुलिन्स की मुझे अभी ये फील हो रही है, टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी है, इस कनेक्शन को लेकर है. ठीक है, दे हैव क्लैरिटी अबाउट देयर फेमिनिन्स. ठीक है, बट मैस्कुलिन जो है अभी वर्क में उनका फोकस है, मनी पे उनका फोकस है अभी, बिकॉज दे नो दैट इन ऑर्डर टू राइज टू देयर ट्रू डिवाइन मैस्कुलिन पोटेंशियल, दे नो दैट दे नीड टू बी एबल टू प्रोवाइड टू द फेमिनिन. एंड अभी अपने आप में थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हैं कि जो चीज़ें आप शायद डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आप चाहते हो लाइफ से, वो मैं अभी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ फाइनेंशियली. लाइक आई एम नॉट दैट स्टेबल प्रॉबली, या आई एम नॉट इन दैट प्लेस और आई एम फीलिंग 100% कॉन्फिडेंट टू बी एबल टू प्रोवाइड द वर्ल्ड टू यू. आई वॉन्ट टू गिव द वर्ल्ड टू यू, बट समटाइम्स आई फील लाइक यू नो मुझे और करना है, मतलब मुझे और अचीव करना है. पर्टिकुलरली लाइक टुडे आई रिसीव दिस वर्ड रिटायरमेंट प्लान एंड retirement planning also. So masculines today are thinking about having particular amount of savings so that they can lead an easy life with their feminine, so that they can fulfill all the wishes and dreams and desires of their feminine. They want to give her the word, they want to give her every dream come true, you know. And it's like, even if I can't do that, I want to at least try, you know, and do my best. And for that masculines are working really hard. Trust me, please trust me when I say this. आज हो सकता है आपको अपनी masculine की एनर्जी पूरे दिन में थोड़ी सी कम फील हुई हो, क्योंकि आपके masculine काम पे ध्यान दे रहे हैं. Also money is on their mind, and I'm seeing this again and again, like retirement planning. They want to grow old with their feminine. I want to grow old with you, right? And I don't know if it is going to be true or not, but I really want that for us. I really want that for you and me. And सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है अगेन, ये फाइनेंसेस से रिलेटेड एनर्जी है आज. दे रियली वांट टू ब्रिंग मोर बैलेंस टू द कनेक्शन. दे नो दैट दे हैवंट बीन एबल टू डू दैट इन द पास्ट. तभी हैंगमैन एनर्जी में है, अपने आप में वो राइज हो रहे हैं, नया पर्सपेक्टिव गेन कर रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. मैं बार बार कनेक्शन बोल रही हूँ क्योंकि ये कनेक्शन उनके समझ में थोड़ा कम आता है. आपको वो पूरी तरीके से समझते हैं डियर फेमिनिन. ये कभी भी डाउट मत रखिएगा कि आपके मैस्कुलिन आपको नहीं समझते हैं. आपको बिल्कुल ठीक तरीके से, इतना सटीक उनका ऑब्जर्वेशन है. मैस्कुलिन्स आर वेरी गुड विद ऑब्जर्वेशन, दे आर वेरी गुड विद फिगरिंग थिंग्स आउट, है ना. और फेमिनिन तो उनकी मतलब बहुत बहुत पुरानी यादों से जुड़ी है, पास्ट लाइफ मेमोरी से भी जुड़ी हुई है. अभी न्यू हुआ है, फियरलेस है बिल्कुल ही. हाँ, तो दे वॉन्ट टू ब्रिंग मोर बैलेंस टू द कनेक्शन डियर फेमिनिन. तो बार बार मैं कनेक्शन इसलिए बोल रही हूँ, कनेक्शन को सोचने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस लाना चाह रहे हैं कनेक्शन में, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत दिया है उनको एंड वो उस तरीके से शायद स्टेप अप नहीं कर पाए. नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे पास्ट में, बट आगे जाके फ्यूचर के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं. दे रियली वॉन्ट टू चार्म यू, दे रियली वॉन्ट टू इंस्पायर यू, दे रियली वॉन्ट टू इम्प्रेस यू. आज वो एनर्जी बहुत आ रही है कि मैस्कुलिन्स आर रियली गेनिंग दिस
strong financial stand to be able to impress their feminine. Okay. और ये गलत भी नहीं है, काफ़ी हद तक ये उनका अपना भी डिज़ायर है टू डिज़ायर अगेन एंड अगेन कमिंग टू गेन सर्टन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर देमसेल्व्स, यू नो, ताकि वो पीस में रहें, वो अपने फुल पोटेंशियल, अपने सोल पर्पस को फुलफिल कर सकें, राइट. तो दे आर होल्डिंग मोर ग्रैटिट्यूड. डियर मैस्कुलिन, इफ़ यू आर वॉचिंग, इफ़ यू आर क्रॉस वॉचिंग दिस वीडियो, ये गाइडेंस आपके लिए आज आ रहा है कि होल्ड मोर ग्रैटिट्यूड फॉर योर सेल्फ. आप बहुत काम कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें जो अभी क्लियर नहीं है वो आगे जाके क्लियर हो जाएंगी. बट प्लीज़ नो दैट यू आर राइजिंग इन योर पोटेंशियल ईच डे, एवरी मोमेंट व्हेन यू बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर एक्शंस, फॉर योर life ahead, and for your feminine as well. You know, you gain more clarity and you move a step forward on your spiritual journey. Just keep following your intuition. जहाँ भी आप stuck हो रहे हैं, keep following your intuition, and that will bring forward all of the abundance that you need. Some of the masculines who are in communication with their feminine are not listening to the feminine. है ना. तो फेमिनिन जो भी आपको बोल रही है, उनकी गाइडेंस, उनकी एडवाइस को लेकर चलें. ऐसा नहीं है कि फेमिनिन आपसे ज़्यादा जानती है, बट शी इज़ कनेक्टेड टू हर ओन बॉडी विजडम, है ना. और आपको ये समझने की ज़रूरत है कि फेमिनिन इज़ शी इज़ द कीपर ऑफ सेक्रेड ऑरिकल विजडम, है ना. तो उनके अंदर से ही ये चीज़ें अपने आप आती हैं. उनका इंट्यूटिव गाइडेंस जो है ऑलवेज स्पॉट ऑन रहता है, आपको लेकर सही रहा है और लाइफ को लेकर भी सही रहता है, तभी वो इतने लोगों को गाइड कर सकती हैं, बिकॉज शी इज़ इन टच विथ हर ओन इंट्यूटिव नेचर. शी इज़ द फेमिनिन. तो अपनी फेमिनिन की अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको वो मतलब थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा. प्रॉबेबली इट्स लाइक यू वुड रिसीव मैनी डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है. और अगर फेमिनिन की आप सुन के चल रहे हैं तो इट्स लाइक श्योर शॉट कि यू गेन दिस financial stability within yourself. And masculines really want to do something for the collective. You know, it's like associating with charities and organizations and NGOs, volunteer करना चाहते हैं और उनको बहुत अंदर डीप खुशी मिलती है. Probably कुछ masculines जो हैं वो अस्पताल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं अपने मुल्क में, अपने एरिया में, probably अपने देश में, या जहाँ भी वो हैं. मतलब वो ऐसी संस्थाएं बनाना चाहते हैं या उनके लिए काम करना चाहते हैं जो रियल चेंज लेकर आ रही हैं, ठीक है. वॉट एवर दैट मीन्स फॉर यू, वॉट एवर दैट मीन्स फॉर योर मैस्कुलिन, बट दिस इज़ कमिंग अप. लाइक दे रियली वांट टू गिव बैक टू कम्युनिटी, यू नो. उनके हिसाब से वो हाईएस्ट सोल पर्पस है अभी, फॉर नाउ. ओके. एंड yeah, so that is all that is coming across. And what are the messages? What do the masculines want to say to the feminines? I want to prove my love to you through actions. No doubt, no doubt. रुबीना कह रही मैं भी बनाना चाहती हूँ. yes. शाइनी सिंह लॉन्गिंग फील हो रही है बट एट द सेम टाइम मूविंग ऑन एंड फोकस ऑन योरसेल्फ वाली एनर्जी भी है. yes. so it's like it's take everything with you. उनको पीछे मत छोड़ो, उनको साथ ही लेके चलो, क्योंकि वो आपके हम सफ़र है, हमराही हैं, है ना. यू बोथ सिटिंग इन द सेम कार. अब आप इस खिड़की में देख रहे हो, वो उस खिड़की के बाहर देख रहे हैं, तो क्या मज़ा है जर्नी का, राइट. तो आप दोनों एक ऐसा ही समझिए, बिकॉज दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रूथ. आप गुस्सा होके या चिढ़ कर या फ्रस्ट्रेट होकर अपने अंदर वो समाहित हो जाते हैं. यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड इट टेक्स वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू दैट. आपने नोटिस किया होगा. बट आप दोनों सेम जर्नी पे हैं, सेम डेस्टिनेशन है दोनों का, एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं है ना. तो उनको साथ ही साथ तो चल रहे हैं आपके, राइट. सो डोंट फील बैड इन योर सेल्फ, यू नो. टॉक टू देम टेलीपैथिकली, उनसे बातें करें, आपको जवाब भी मिलेगा. आपको मतलब दे लाइटन द मूड ऑल्सो एट टाइम्स. तो या सो दैट इज़ दैट. एंड हमराही तू मेरे संग जूं तो डर क्या. वाह. रहना है तेरी पलकों के साए साए. पूरा गाना ये मैं सुनूंगी, मुझे समझ नहीं आया कौन सा गाना है, राइट. सो जैसे मैंने बोला, मैस्कुलिन्स प्रूव करना चाहते हैं कि वो आपको
कितना, किस हद तक, लाइक दे आर डिवोटेड टू दिस कनेक्शन, डिवोटेड टू यू, एंड दे आर राइजिंग अप इन देयर पोटेंशियल. They are really wanting to show that through their action, that how they have changed, how they have evolved, and how responsible they are now. And they are like masculines आज बोल रहे हैं, please trust me, I'm not going to break your heart. ठीक है, यू हैव नो आइडिया ऑफ द पेन यू हैव कॉज्ड मी. ठीक है, तो मैस्कुलिन्स को भी हर्ट होता है, मैस्कुलिन्स का भी दिल टूटता है. डियर फेमिनिन, जहाँ आपने लाइन क्रॉस करी है उस चीज़ पे ध्यान दें कि वो चीज़ें रिपीट ना हो पाएँ, क्योंकि वो आपका हर्ट था, वो आपका पेन था, जिसमें आपने गुस्से में आके, रोश में आके उनको बोल दिया, बट वो चीज़ उनको बहुत चुभी है. ऑल्दो ही इज़ नॉट होल्डिंग दैट विद इन हिमसेल्फ, बट कुछ चीज़ें आपने जो कहीं आपके मैस्कुलिन को बहुत बहुत ज़ोर की चुभी हैं, यू नो. एंड ट्विन फ्लेम का ट्रिगर बहुत खतरनाक होता है, एकदम बिच्छू के डंक जैसा लगता है ना, जान चली जाती है. बट मैस्कुलिन आज शायद उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, राइट. आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो आपके मैस्कुलिन ने उनके फैमिली से बात करी है, या बात छेड़ी है, या कुछ और इलेबोरेट किया है, कुछ और डिटेल्स दी हैं इस कनेक्शन को लेकर, राइट. सो नाम आ रहा है आपका बार बार ऊपर, वाई यू सो मीन. सो मैस्कुलिन्स बोल रहे हैं, प्लीज़ डोंट बी सो मीन टू मी. डिवोटेड वर्ड आ रहा है दूसरी बार. नाइस, शिवांगी सिंह, नाइस. एंड लुक, पिंक हार्ट. वाई यू सो मीन, यू नो, you have hurt me, you have also hurt me. प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट, यू नो, खाली आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, मेरी भी फीलिंग्स हर्ट हुई हैं. ऑल्दो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ऑल्दो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल्दो मैं उस चीज़ में बार बार ऊपर नहीं लेकर आ रहा हूँ, बट ही इज़ ऑल्सो हीलिंग. ओके, सो प्लीज़ सेंड हिम लव, प्लीज़ होल्ड दैट स्पेस फॉर योर मैस्कुलिन एज वेल, क्योंकि आपका इनर मैस्कुलिन उनकी फेमिनिन के लिए स्पेस होल्ड करना चाहिए. यू नो, बोथ द एनर्जीज आर प्रेजेंट विद इन बोथ ऑफ अस. फेमिनिन के अंदर इनर मैस्कुलिन, इनर फेमिनिन होता है, मैस्कुलिन के अंदर भी इनर फेमिनिन, इनर मैस्कुलिन होता है. एंड यूनियन के पहले जो है, आप दोनों पोलैरिटीज़ में रहते हैं, दोनों एनर्जीज़ में रहते हैं. यूनियन में हम तब आते हैं जब हम एक पोलैरिटी में साइड करते हैं. जब हम कंप्लीटली फेमिनिन में होंगे तभी मैस्कुलिन स्टेप अप करके आते हैं, राइट. तो यूनियन के बाद में हम अपनी ओरिजिनल पोलैरिटी अज्यूम कर लेते हैं, बट यूनियन के पहले तक में हम दोनों पोलैरिटीज़ में होते हैं. वी हाउस ऑल ऑफ दोज एनर्जीज विद इन. सो दिस इज समथिंग टू बेयर इन माइंड. ठीक है, सो प्लीज़ डू योर इनर वर्क. योर मैस्कुलिन इज रियली ब्लेमिंग यू टुडे अ लिटिल बिट, यू नो, थोड़ा सा मायूस से हैं. आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, ये उनका फियर है कमिटमेंट का. एंड अगेन, कनेक्शन को लेकर कमिटमेंट का फियर है, आपको लेकर नहीं है. It might not make sense to you, but think about it. It's the connection that drives them nuts. उनको आप समझ आ रहे हो, आपकी बातें समझ आ रही हैं, आपसे पूरी तरीके से मैग्नेटाइज्ड हैं, बट इस कनेक्शन की जो इंटेंसिटी है, वो उनके अंदर का जो शैडो एस्पेक्ट है वो ऊपर लेकर आता है, तभी वो भाग जाते हैं. क्योंकि दे नीड टू टेक टाइम आउट टू ब्रीथ. इट्स लाइक दे लिटरली कैनॉट ब्रीथ फ्रॉम ऑल ऑफ दैट इंटेंसिटी. दे नीड टू मेक सेंस ऑफ थिंग्स, है ना. दे नीड टू प्रोसेस व्हाट वेंट ऑन. आपने क्या बोला, उसको प्रोसेस करने के लिए उनको टाइम चाहिए, तभी वो दूर चले जाते हैं. और ऐसा नहीं है कि उनको आपको कमिट करने में फियर है, राइट. उनको इस कनेक्शन में आने से थोड़ा सा उनको डर लगता है, बिकॉज दे फील लाइक दे आर लूजिंग देमसेल्व्स. उनकी आइडेंटिटी मेल्ट हो रही है लिटरली, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. दिस इज़ व्हाट इज दिस जर्नी इज़ अबाउट, कि हम अपने ट्रू सेल्फ में, अपने ट्रू डिवाइन सेल्फ में आए, और उसके लिए इंडिविजुअलिटी को डिजोल्व करना पड़ता है. तो वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो जाता है मैस्कुलिन के लिए. ओके, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम. तो आज शायद आपके मैस्कुलिन थोड़ा सा मायूस महसूस कर रहे हों, थोड़ा सा सैड महसूस कर रहे हों. हार्ट पेन, मुझे ऐसा लग रहा है, हार्ट प्रेशर, हार्ट पेन, पैलिपिटेशंस, या पसीने, ठंडे पसीने आना बैठे बैठे, हिचकियाँ आना, एंड गला सूखना, प्यास ज़्यादा लगना. ये सब चीज़ें अगर आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपके मैस्कुलिन इज़ हीलिंग देयर हार्ट चक्रा, देयर हार्ट सेंटर. दे आर लर्निंग हाउ टू फॉरगिव देमसेल्व्स अ लिटिल मोर टुडे. I want to tell you the truth. Please understand that I will come forward and I will share the truth with you in time. I wonder if you're with anyone else, तो आपके मैस्कुलिन थोड़ा सा शायद आज
फियर में हैं कि उनको लग रहा है पता नहीं कोई और तो नहीं है, मैं सब देख रहा हूँ, आई एम गोइंग थ्रू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू आर शेयरिंग एंड आई एम 99% श्योर दैट इट इज़ फॉर मी, बट दैट 1% इज़ रियली गिविंग मी स्लीपलेस नाइट्स. आई एम नॉट श्योर इफ यू आर विथ समवन और नॉट, प्लीज़ लेट मी नो. टर्न अराउंड, आई एम राइट बिहाइंड यू. ठीक है. तो आपके मैस्कुलिन आपको ये याद दिला रहे हैं दैट दे आर ऑलवेज विथ यू, दे आर नेवर अवे फ्रॉम यू. जस्ट टर्न अराउंड एंड आई एम राइट देयर. We'll be celebrating soon, I promise. I am fully in my power. No one else has ever compared to you. A surprise meeting is in store for us. Very nice. So physical meeting is imminent. If you're watching this video right now, please open up to this possibility of having a physical meeting with your twin flame really soon, because your masculine really wants to meet with you, right? So what is happening with the feminines today? For the feminines, I have balance, डेथ, नॉट मी जस्ट टॉकिंग अबाउट बिच्छू का डंक, माय गॉड. तो फेमिनिन्स अपनी डार्क फेमिनिन एनर्जी में है आज, ऐसा लग रहा है शायद, जो कि आपको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, राइट? पास्ट में आपने जहाँ भी अपने मैस्कुलिन को हर्ट किया है या आपके वर्ड्स ने, आपके एक्शंस ने आपके मैस्कुलिन को पेन पहुँचाया है, तो वो आपको उस चीज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है. उसी से आपको एपिफनी मिलेगी, आपके अंदर क्या चेंज, क्या शिफ्ट होना चाह रहा है, वो आपको आइडिया मिलेगा आज. क्या चीज़ ख़त्म हो रही है आपके अंदर, एक पूरा चैप्टर है फेमिनिन्स के लिए जो एंड हो रहा है. ठीक है. दिस इज़ द एंड, मार्किंग द एंड ऑफ एन ओल्ड चैप्टर, पर्टिकुलरली आपकी सोच को लेके. ठीक है. दिस इज 10 ऑफ wands. आई एम सॉरी, दिस इज 10 ऑफ wands. तो दिस इज मार्किंग द एंड ऑफ अ चैप्टर, स्पेशली आपकी सोच काम को लेकर. ठीक है. तो काम के बारे में जैसा भी आप सोचते आए हैं अभी तक डियर फेमिनिन, वो सोच अब बदल रही है, राइट? और वो एक नया चेंज लेकर आ रही है. प्रॉबेबली इट्स योर मैस्कुलिन्स एनर्जी जो आपको इंस्पायर कर रही है अभी इस टाइम टू बी मोर एंथुजियास्टिक अबाउट वर्क. ठीक है. ऑल्दो आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट आप अपना काम एंजॉय कर रहे हैं फाइनली, काफ़ी टाइम बाद मुझे ऐसा लग रहा है, राइट? एंड 7 ऑफ wands अगेन बहुत ब्यूटिफुल कार्ड है टू स्टैंड अप फॉर योर, टू डिफेंड योर ऑनर, टू स्टिक टू योर वर्ड, एंड यू हैव डिवाइन्स हायर ग्राउंड. आपके पास यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं, कतराने की ज़रूरत नहीं है. काफ़ी ऑपोजिशन अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं करंटली डियर फेमिनिन, कहीं से आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है शायद, ये एनर्जीज हो सकती हैं या ये कुछ लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको चैलेंज कर रहे हैं. अभी काफ़ी सारा कंपटीशन मुझे दिख रहा है. तो लोग ना आपको देख रहे हैं, आपका पोटेंशियल देख रहे हैं, आपको राइज करते हुए देख रहे हैं, अनअपोलोजेटिकली अपने लाइट में चमकते हुए आपको देख रहे हैं. एंड दे रियली आर लाइक, ये कैसे हो सकता है? लाइक ये बंदी क्या कर रही है, मतलब इट्स लाइक दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, बट उनका सोल ड्रॉ हो रहा है आपके तरफ फॉर स्पिरिचुअल रीजन्स. बट ईगो में वो देख नहीं पा रहे हैं आपको राइज होते हुए. उनको बहुत अजीब सा एजिटेशन, अटपटाहट महसूस हो रही है, एंग्जाइटी महसूस हो रही है, जेलस हो रहे हैं काफ़ी लोग आपको बैड वाइब्स भी भेज रहे होंगे शायद. बट जस्ट सेंड देम लव, सेंड देम अवेयरनेस. ठीक है. एंड नो दैट इट्स नॉट एक्चुअली देम. सोल का कोई फॉल्ट नहीं होता है. सोल तो असेंड करना चाहता है, वो तो केवल परमात्मा से मिलन चाहता है, और ये सब कोई बकवास नहीं चाहिए सोल को. बट ईगो है जो सर्वाइव करना चाहता है, जो चाहता है कि मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे लोग सराहें, मैं दूसरे से बेहतर बनूं. ये सब ईगो की डिज़ायर्स हैं. तो काफ़ी लोग हैं आपके आसपास जो आपको देख रहे हैं राइज होते हुए. एंड ये देखो, ये फेमिनिन है पूरा अपने लव में. ये केक का शेप देख रहे हो आप, लव जैसा हार्ट के शेप का है. फेमिनिन अपने पूरे लव में है. एंड फेमिनिन इज शोइंग कि ये देखो, मतलब दिस इज द पावर ऑफ लव, कि आपको मैंने जितना प्यार दिया है उतना मैं खुद को भी दे रही हूँ, राइट? तो आपको राइज होते हुए देख रहे हैं, अपने आप को आप स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, राइट? सो दैट इज रियली agitating some people, but 7 of wands is a card of perseverance. strength का कार्ड है, perseverance का कार्ड है कि आप टिके रहिए, आप डटे रहिए अपनी बात पे, क्योंकि आप सही हैं. यूनिवर्स आपका पूरा फुल सपोर्ट दे रही है, आपके पास हायर मोरल ग्राउंड है. ठीक है डियर फेमिनिन. सो प्लीज़ डोंट फील दैट हर्ट एंड पेन विद इन योर सेल्फ कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला फील कर रही हूँ. मैस्कुलिन भी नहीं है यहाँ पे अभी. मैस्कुलिन यहाँ पे अभी नहीं है क्योंकि मैस्कुलिन ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइट देखें, आप अपनी ब्रिलियंस रिकग्नाइज करें.
आप अपना फुल पोटेंशियल जो है वो उसको एम्ब्रेस करें, है ना, अपने आप को पहचाने, तभी आपके मैस्कुलिन दूर है। कि मतलब मैं क्या ही बताऊं भाई, तुम मतलब यू ब्लो माई माइंड अवे, है ना, यू ब्लो माई माइंड अवे एंड यू सो वंडरफुल, यू सो गॉर्जियस। और पास्ट हर्ट से आप हील कर रही हैं फेमिनिन, तो बिकॉज आई एम सीइंग 2 हार्ट्स ओवर हियर, ठीक है। तो पास्ट रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपने हार्ट ब्रेक महसूस किया, जो आपने रिजेक्शन या अबैंडनमेंट या गैस लाइटिंग या बहुत रूड बिहेवियर, बहुत ही मतलब दिस इज़ लाइक वेरी बैड एनर्जी दैट आई एम एक्सपीरियंसिंग। आपका पास्ट रिलेशनशिप जो था डियर फेमिनिन बहुत ही ड्रेनिंग था। इट वॉज नॉट एट ऑल अ सपोर्टिव रिलेशनशिप फ्रॉम 2 एंड्स। प्रॉबली यू आर ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग उस रिलेशनशिप में, तभी आप इतना ड्रेन महसूस करें, थका हुआ महसूस करें। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पूरे बर्डन्स आप ही ने संभाले, आप ही ने शोल्डर किए, राइट। एंड उसके बाद भी शायद आपके एक्स ने आपका बहुत दिल दुखाया है, राइट। बट दिस इज टाइम फॉर यू टू राइज बिकॉज दैट वॉज टू एंड। वो चीज़ को एंड होना ही था, राइट। एंड वो चीज़ें हैं एंड हो ही रही हैं, राइट। दैट आवर मोमेंट इज कमिंग इन बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर ऑन दिस फैंटास्टिक जर्नी ऑफ ट्विन फ्लेम्स, है ना। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत ही सेक्रेड कनेक्शन है और इसे आपको सेक्रेड ही रखना है, ठीक है। अपनी इंटेग्रिटी में रहें और अपने ट्रूथ में रहें। आपको कई तरफ से टेम्पटेशंस आएंगे, बहुत से तरीके के, ठीक है। डियर फेमिनिन, डेथ कार्ड आ रहा है, दिस इज टेलिंग मी कि कहीं से आपको टेम्पटेशन आ रहा है ना, टू डू समथिंग गोलमाल है ना, इधर उधर छेड़खानी या बदमाशी या शॉर्टकट लेने का कुछ ऐसा माइंड में अगर प्लान आ रहा है, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ स्टे इन योर इंटेग्रिटी। जो गलत है वो तो नीचे आ ही रहा है, अगर आप गलत का साथ देंगे तो आप भी नीचे, आपका रास्ता भी नीचे ही है फिर, राइट। सो प्लीज साइड विद दैट विच इज़ ट्रू, प्योर एंड डिवाइन, राइट। अगर कहीं पे भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो डिवाइन का नाम लें, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको राह मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। एंड यू आर कमिंग इन टू बैलेंस विद इन योर सेल्फ एंड योर पर्सन। आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आप वेट नहीं कर रहे हैं, आपके पर्सन भी वेट कर रहे हैं आपके अवेकन होने का, आपके राइज होने का। आई एम वेटिंग फॉर यू टू राइज अप टू योर पोटेंशियल so that we can come into this beautiful union within self, ठीक है। एंड इट्स अ ह्यूज रीबर्थिंग फॉर फेमिनिन्स। काफ़ी पेन आज आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, ये आपका पेन हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप से जुड़ा, और ये आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी हो सकती है, राइट। दैट इज कॉजिंग दिस रीबर्थ एनर्जी इज फीलिंग लाइक पॉइजन राइट नाउ। बट पॉइजन का काम क्या, दवा भी करता है। पॉइजन दवा का काम भी करता है, अगर छोटी सी मात्रा में दी जाए तो एक्चुअली आपकी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है उस चीज़ से, है ना। तो जो चीज़ आपको डेथ लाइक सिचुएशन में लेकर आ रही है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट प्रॉपर डेथ, it feels like death but it is not death. So anything that does not kill you only makes you stronger. That's the message of this card today, है ना। और एक बहुत बड़ी एपिफनी है डियर फेमिनिन जो आपके आगे आने वाली है आने वाले 3 दिनों में, ठीक है। टार मोमेंट के बाद में ये हार्ट ब्रेक, ये पेन, ये रिजेक्शन, ये अबैंडनमेंट और ये टार मोमेंट है, ये आपके लिए बहुत बड़ी एपिफनी लेकर आ रहा है आपकी जर्नी पे। एंड बहुत बड़ा एक चैप्टर आपके लाइफ में क्लोज हो रहा है। तो कोई भी आपके आसपास जो ईगोइक कॉन्शियसनेस में है, अपनी ईगो में है, अपनी नाक के बारे में सोच रहे हैं या अपनी इज्जत के बारे में सोच रहे हैं, उनको केवल ऑब्जर्व करें क्वाइट होकर, है ना। वो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं कि ये इस राह पे तो नहीं जाना बॉस ये गलत है। हो सकता है आप उनको कॉल आउट करने की ज़रूरत पड़े, आपको हो सकता है नहीं भी ज़रूरत पड़े, राइट। बट प्लीज़ स्टे अवेयर ऑफ दिस डिसेप्टिव बिहेवियर, दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, है ना। और ultimately I have the sun card coming up for the feminine. So this is beautiful, lots of love, luck, happiness, prosperity coming your way dear feminine. Everything is working out. Please trust divine कि जो भी आपके सामने लाया जा रहा है वो आपके लिए लाया जा रहा है। अभी I see why everything happened the way it did and finally feminine masculine को ये बोल रही है कि अब मुझे सब समझ आ रहा है कि जो भी चीज़ें हुई वो हमारे लिए हुई, ताकि हम डिवाइन से जुड़ सकें, डिवाइन की एनर्जी से, स्पिरिट से जुड़ सकें, होली स्पिरिट से, और हम कनेक्शन को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि मैं अपने अंदर जो भी हैं चेंजेस महसूस कर रही हूँ, रोज़ नए रियलाइजेशंस हो रहे हैं मुझे, पुरानी आदतें, पुराने जो मेरे स्टेट ऑफ बीइंग था वो चेंज हो रहा है, क्योंकि मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि मुझे
कहाँ कहाँ बदलने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना. एंड फेमिनिन साथ बोल रही है आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, एंड मैस्कुलिन इज लाइक आई एम सॉरी आई कैन नॉट कमिट टू यू राइट नाउ. ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि फेमिनिन्स जो हैं दे आर डिजायरिंग कमिटमेंट फ्रॉम देयर पार्टनर. ओके, सॉरी समथिंग गॉट इनटू माय नोज. सो ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है फेमिनिन्स को कि यू नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विथ यू एंड कमिटमेंट. इतना क्यों ही डिफ़िकल्ट है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस योर मैस्कुलिन हैज़ गॉन थ्रू इन द पास्ट, इट हैज़ रियली अफेक्टेड हिज हार्ट and his ability to trust. It is not his fear of commitment to you, dear feminine. It is his problem of committing to this journey, to this connection. बहुत ही ओवरवेलमिंग फील होता है, उनको भाग जाने का मन करता है, क्योंकि जो डार्कनेस आप दिखाते हैं उनको, जो आप मिरर दिखाते हैं, इट्स अनबेरेबल फॉर देम. जो चीज़ें वो सप्रेस करते आए हैं, इग्नोर करते आए हैं, वो एकदम से ऊपर आ जाती हैं. एंड दे डोंट इवन नो हाउ दे आर गोइंग टू get forward with this relationship all as much as they want to. They really want to do that in heart of hearts, but ये जो darkness वाला जो मामला होता है बहुत इनको कभी कभार शॉक में डाल देता है, and it gets too overpowering for them, and they feel out of control. All of their emotions run wild, and they have never felt this way before for anybody. तो उनको एबनॉर्मल नहीं चाहिए, उनको नॉर्मल चाहिए. उनको सड़ा हुआ सा, मतलब लाइक लेस चैलेंजिंग रिलेशनशिप, लेस चैलेंजिंग जॉब, समथिंग दैट इज़ नॉट क्रेजी, समथिंग दैट इज़ लाइक सोशली एक्सेप्टेबल. वो सब चीज़ों में उनको कंफर्ट मिलता है, और ये कनेक्शन जो है उनको आउट ऑफ कंफर्ट जोन, मैजिक जोन में लेकर आता है. दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. दिस इज़ योर कंफर्ट जोन एंड दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स. तो ये आप इस मैजिक वाले स्पॉट में खड़े हुए हो, जो कि उनको बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है. कब तक व्हेन सो वही डिवाइन आपको, आज सुबह मैंने लाइव किया ना, तो मैंने यही बोला था कि हम बार बार क्वेश्चन करते हैं डिवाइन के प्लान को कि कब होगा, अब नहीं तो कब होगा. जब आप कब पूछ रहे हैं तो ये आप समझ जाइए कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं बेटा पेशेंस. डिवाइन इज टीचिंग यू पेशेंस. जब आप व्हेन पूछते हैं कब होगा, तो डिवाइन इज सेइंग प्लीज लर्न टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, लर्न टू बी हैप्पी इन योर ओन कंपनी, लर्न हाउ टू कमिट टू योर सेल्फ फर्स्ट. आप खुद के लिए कमिटेड नहीं हैं, आप दूसरे के लिए क्या कमिट करेंगे अभी. दिस इज़ अ वेरी हार्ड शॉक. आई एम रियली सॉरी, बट यही होता है. आप अपने आप को वो सब चीज़ें देना जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से, अपने मैस्कुलिन से. वो सब चीज़ें अपने आप को पहले दें, और वो आएंगे आपके सामने. इन टाइम ही इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड, राइट. तो ये जो नीडीनेस वाली एनर्जी है, एनीवेज व्हाट इज़ कमिटमेंट? क्या है कमिटमेंट, आप मुझे ये बताइए. एक रिंग, एक पीस ऑफ पेपर, कुछ चंद लोगों के सामने खड़े होके आपने वाउज ले लिए, बस ये है कमिटमेंट. और क्या है कमिटमेंट? एंड कमिटमेंट के मायने क्या हैं? ये अर्ली लॉज हैं जो कि ट्विन फ्लेम डायनेमिक में बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है. दिस इज अ सीक्रेट मैरिज दैट ऑलरेडी टुक प्लेस. यू आर ऑलरेडी समबडीज वाइफ एंड ही इज ऑलरेडी समबडीज हस्बैंड. Both twin flames are already committed to each other. This is a sacred marriage that took place even before you were born. तो आप किस चीज़ की कमिटमेंट मांग रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए. है ना, हम रील्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो हम उसी जोन में आ जाते हैं. बट आप चीज़ों को हायर पर्सपेक्टिव से देखें कि दिस इज़ ऑलरेडी देयर, यू नो. एंड जस्ट लाइक सी फॉर एग्जाम्पल, you got married to your person, right? And he has gone to some trip, आउट ऑफ टाउन ट्रिप पे गए हैं. तो आप क्या, मतलब आप वरी करेंगे कि नहीं यार पता नहीं वो आएंगे कि नहीं. अरे किसी, मतलब इट साउंड सो वियर्ड ना, कि आपके हस्बैंड है, वो ट्रिप पे गए हैं, वो ट्रिप से वापस आएंगे तो घर ही आएंगे और कहीं नहीं जाएंगे. वो क्यों जाएंगे, राइट. तो वही चीज़ आप यहाँ पे डायनेमिक में अप्लाई करिए. इट साउंड्स वेरी फूलिश व्हेन, क्योंकि जब आप चीज़ों को एक्सपैंडेड व्यू से देखना शुरू करते हैं, जब आप इस कनेक्शन के ट्रूथ को पकड़ के चलते हैं, आप में कोई डाउट नहीं आता, आप में कोई जेलसी भी नहीं आती, और आपको ये सब बातें बहुत बचकानी सी लगने लगती हैं. इट फील्स वेरी वेरी चाइल्डिश, यू नो, दैट व्हाई वुड आई वरी अबाउट अ थिंग लाइक कमिटमेंट व्हेन आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू माई सेल्फ, टू माई गॉड, टू माई ट्विन फ्लेम. ही वुड ऑल्सो मिरर दैट बैक टू मी. वो आपको कमिट इसलिए नहीं अभी कर रहे क्योंकि आप खुद कमिटेड नहीं हैं.
आप खुद डिवोटेड नहीं है, आपके मन में कहीं ना कहीं कीड़ा होगा कि अगर भाई ये इंसान वापस नहीं आया तो आई एम गोइंग टू फाइंड सम सोलमेट एंड आई एम गोइंग टू सेटल डाउन। लिख के ले लो आप मुझसे। और ये ह्यूमन माइंड है, ये थॉट आएगा, गलत नहीं है ये थॉट, ह्यूमन माइंड है, हमें चाहिए कंपेनियनशिप। और ये एक बहुत ही आम सा विचार जो आता है, हम सभी को आता है इस जर्नी पे, राइट। बट वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी आर ऑन अ सेक्रेड पाथ विच इज़ मेंट टू लीड अस टू गॉड, जो कि एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ हम अभी समझ में नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कहाँ लीड कर रहा है। डिवाइनली मैरिड है, डिवाइन से बड़ा कोई नहीं है। वरी इसकी ट्रिप इसी जन्म में ख़त्म होगी या नेक्स्ट, दैट इज़ अप टू यू देन अगेन मुस्कान। सो इट्स लाइक व्हाट टाइमलाइन आर यू असाइनिंग टू। अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं भाई इस जन्म में तो होगा नहीं, तो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स हैं जो 20-20, 25-25 साल अपने काउंटर पार्ट के लिए वेट कर रहे हैं। वेट, डोंट वेट, वाई आर यू वेटिंग, लिव योर लाइफ, लिव योर लाइफ एंड इट विल हैपन। प्लीज़ ट्रस्ट, प्लीज़ हैव फेथ कि आपने अभी इस जन्म में आपने इनकारनेट किया है, राइट, एंड आप अपने ट्विन से मिले हो, एक्टिवेशंस हुए हैं, आपको इतने सारे साइंस दिख रहे हैं। भगवान क्यों इतना गंदा मजाक खेलेंगे आपके साथ में? कुछ ना कुछ सोच के आपको मिलाए होंगे ना, राइट। नहीं तो वो आपको केवल स्पिरिचुअल जर्नी पे इनिशिएट करना होता तो वो कैसे भी कर सकते थे, बिना ट्विन के भी हो सकता था वो, बट ट्विन ही क्यों मिले, राइट, बिकॉज दैट इज टू हैपन, right? So please trust that, please stay with that. I feel like you've moved on from me. Feminine's feeling like this insecurity vibe coming in from the feminines के feminine को लग रहा है कि like I feel like you have moved on, और जवाब में masculines क्या सोच रहे हैं, masculines की क्या energy है, completely opposite. They are planning their retirement, they are planning their whole life with you, to grow old with you, and feminine पूछ रही है कि you know, have you moved on from me? I want to hold you, okay? So there is this beautiful loving energy that feminines also want to send to the masculines today. I want to hold you, I want to cry with you, I want to complain and blame and you know do all childish stuff in front of you. I'm following my intuition slowly but surely. I want to explain to you जहाँ पे आपने जिन जिन चीज़ों को लेकर अपने मैस्कुलिन को हर्ट किया है या उनके ट्रस्ट को ब्रेक किया है, शायद वहाँ पे आप हो सकता है आप के मन में आ रहा हो कि आप उनको सफाई दें आज। आई एम डीप इन माई इमोशन, सो डेफिनेटली आई एम फीलिंग लाइक फेमिनिन्स की आज एनर्जी बहुत पेनफुल और हर्ट की है, काफ़ी सारा इमोशनल बैगेज है जो फेमिनिन्स आज रिलीज कर रही हैं। सो प्लीज़ गिव दैट टाइम टू योर सेल्फ, प्लीज़ नो दैट इट इज़ ऑल हैपनिंग, योर मैस्कुलिन इज ऑलरेडी मेकिंग प्लान्स, राइट। आई वॉन्ट टू मीट विथ यू अगेन, ये मिरर्ड एनर्जी है, मैस्कुलिन इज ऑल्सो फीलिंग लाइक दे वॉन्ट टू मीट अप विद द फेमिनिन इन द थर्ड डायमेंशनल रियलिटी। तो एक गाइडेंस कार्ड और मैं फाइनली पुल आउट करती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया आज का सेशन, बट लेट मी जस्ट डू दिस। व्हाट इज़ वन मैसेज दैट इज कमिंग अक्रॉस फॉर ट्विन फ्लेम्स? ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं पूरे ट्विन फ्लेम कलेक्टिव के लिए, सब ट्विन फ्लेम्स के लिए। ये मैसेज आ रहा है कि देयर इज़ जस्टिस taking place, there is justice taking place in the collective, in the entire dynamic. It's like past में जहाँ जहाँ भी आपको ऐसा लगा है डियर ट्विन फ्लेम कि आपके साथ में चीज़ें सही नहीं हुई हैं, there has been an imbalance, फेयरनेस नहीं हुआ है, या आप चीट करे गए हो, आपको धोखा मिला है, चाहे ये आपके जाने लोगों से हो सकता है, बहुत क्लोज्ड वन से हो सकता है, कामिक से हो सकता है, या फिर कहीं दूर के किसी फ्रेंड ने या किसी ने आपको धोखाधड़ी करी है, आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपने लॉस बेयर किया है। प्लीज़ नो कि सूद समेत वो आपको वापस दे दिया जाएगा, बिकॉज देयर इज स्पिरिचुअल जस्टिस एट वर्क हियर, ठीक है। स्पिरिचुअल जस्टिस इज टेकिंग एक्शन एंड टेकिंग प्लेस। सो डिवाइन आपको एनकरेजमेंट भेज रहे हैं आज कि अपना दिल छोटा ना करें, स्टे पॉजिटिव लाइक दिस ब्यूटिफुल ब्लैक आइड सूजन दैट इज स्माइलिंग इवन इन द फेस ऑफ डार्कनेस, दिस फ्लावर इज स्माइलिंग, ठीक है। सो प्लीज नो दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड एंड इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग। कुछ ट्विन फ्लेम्स जो कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं या कोर्ट कचहरी के मामले में फंसने से उनको डर लग रहा है, उसके लिए भी डिवाइन आपको एनकरेजमेंट भेज रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिलेगा, हर तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। यस रुबीना सिंह, आज की रीडिंग झकास है ही, इतने पावरफुल मैसेजेस आ रहे हैं एंड एक्चुअली मैंने करी भी नहीं है रीडिंग, 2-3 दिन हो गए, तो मुझे ऐसा लग रहा है पूरा जैसे सब पाइप में से सब निकलता चला जा रहा है आज।
तो या सो दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, बोल्ड, करेजियस, पावरफुल एनर्जी जो यूनिवर्स आपको सेंड कर रही है. ऊपर मैसेज आए, गाइडेड बाय एंजल्स. यू आर ऑलवेज गाइडेड बाय एंजल्स, यू आर ऑलवेज गाइडेड बाय डिवाइन, यू आर ऑलवेज गाइडेड बाय गॉड. तो जहाँ भी आप फंसे हैं, जहाँ भी आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहे, मतलब मैं कर रहा या कर रही कुछ गलत तो नहीं होने जा रहा है मेरे हाथों से, मैं कहीं गलत कर्मा तो नहीं क्रिएट कर रहा, तो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक एंड कनेक्ट विद डिवाइन. ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट करें, मेडिटेट करें एंड आस्क. यू विल गेट द आंसर्स, आई प्रॉमिस यू. आंसर्स आर वेटिंग टू कम टू यू, डियर ट्विन फ्लेम. ओके, ऑल्सो आई हैव वाटर, आई एम सॉरी, रीबर्थ एंड एनलाइटनमेंट. ठीक है, तो दिस इज अगेन आई एम फीलिंग लाइक दिस इज प्रीडोमिनेटली फॉर फेमिनिन्स, बट आई फील दिस फॉर बोथ द ट्विन फ्लेम्स, क्योंकि फेमिनिन्स आर लीडिंग दिस कनेक्शन बाय हीलिंग देयर ओन इमोशनल एनर्जी टुडे. आज बहुत सा ड्रेन फील कर रही होंगी फेमिनिन्स, बट देर इज़ अ ह्यूज रीबर्थिंग दैट इज टेकिंग यू टूवर्ड्स अ पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट. एक बहुत बड़ी एपिफनी है. ऑल्सो अगेन एंड अगेन मैं हर वीडियो में ये मैंशन कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मैसेज है, बार बार आना चाह रहा है कि ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ट्विन फ्लेम्स के लिए. जो भी स्पिरिचुअल पाथ पे अग्रसर हैं उनके लिए ये सितंबर का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं, बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं. एंटायर चैप्टर्स आर कमिंग टू क्लोज. कामिक जो डिसोल्यूशन है वो ऑलरेडी इन मोशन हो चुका है. सो प्लीज़ स्टे ओपन टू द हाइस्ट पॉसिबिलिटी फॉर दिस कनेक्शन, फॉर योर सेल्फ, फॉर योर ट्विन फ्लेम, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग एंड दिस इज समथिंग दैट इज इंटेंडेड बाय डिवाइन. ठीक है, तो जो डिवाइन ने इंटेंड किया है उस चीज़ को कोई नहीं रोक सकता है. नो बडी कैन स्टॉप इट. एंड दिस इज अनदर साइन. प्लीज if this is another sign. I wanted to watch Beauty and the Beast after I ended this live, and here it is. Here's my sign again. I've been seeing Beauty and the Beast everywhere. तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डिज्नी की जो पुरानी वाली कार्टून थी, जो ब्यूटी एंड द बीस्ट, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज़. वो अगर आप देखेंगे तो उसमें कुछ मैसेजेस आपको मिलेंगे आपकी डिवाइन जर्नी को लेकर. बट डिवाइन इज सेइंग कि जो मैंने आपके लिए इंटेंड किया है, जो ट्विन फ्लेम मैंने आपको आपकी लाइफ में गिफ्ट किया है, प्रेजेंट किया है, दैट इज़ फॉर अ रीज़न. प्लीज़ ट्रस्ट दैट लव, प्लीज़ ट्रस्ट दैट योर ट्विन फ्लेम इज़ गोइंग टू कम फॉरवर्ड एंड ऑफर यू. He's going to offer you that commitment, that love, that stability in life. That promise is already made in heaven. Okay, so please cherish the beauty of this connection. It's beautiful. It's like your twin flame is like behind this glass dome. You know, this rose behind the glass dome. You can see its beauty, but you cannot touch it right now. When the time is right, when the curse is broken, then you can just like take it off and you can just access the rose then, right? So right. So yeah, Divya knows about this क्योंकि मैं दिव्या से बात कर रही थी, रुबीना से भी बात कर रही थी इस बारे में. तो yeah, so that is all that is coming across. I hope this reading resonated with you. I enjoyed this reading a lot and I feel like myself after doing this reading after so many days. So I hope you have a great night. Take care. I love you so much. Bye bye.